Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lectures, we have already studied about acids and bases. The third major topic for this chapter is salts. Now, what are salts? Salts क्या होते हैं? So, you might have heard about various salts: sodium sulfate, sodium chloride, potassium chloride, aluminum sulfate, sodium acetate. These are all salts. So, salts are basically of three types. Salts basically तीन types के होते हैं. First are the acidic salts, the basic salts, and neutral salts. एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, अगर कोई सॉल्ट है उसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और उसे लिटमस पेपर से टेस्ट करें, इफ वो लिटमस पेपर इफ इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दैट मीन्स वो क्या है? एसिडिक सॉल्ट है. इफ इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, दैट मीन्स वो बेसिक सॉल्ट है. And if there is no change in the color of the litmus paper, that means वो neutral salt है. ठीक है, अब ये acidic salt, basic salt, neutral salt, इन तीनों में difference आता कैसे है? क्यों इन salts में difference होते हैं? So what happens that when a strong acid reacts with a strong base, it forms neutral salt. For example, HCl strong acid है, NaOH strong base है, it forms NaCl which is a neutral salt. Okay, when a strong base reacts with a weak acid, it forms बेसिक सॉल्ट. ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाते हैं बेसिक सॉल्ट. एंड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ अ वीक बेस, इट फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट. वो एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7. The pH of basic salts is more than 7 and the pH for neutral salts is 7. Okay, so this is the difference between different types of salts. Now the most common type of salt, which is commonly known as common salt. Okay, so I am talking about common salt, that is NaCl, sodium chloride. ठीक है, NaCl, sodium chloride. अब सोडियम क्लोराइड जो मोस्ट मेजर अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो कहां से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम सी. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दैट व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, it forms NaCl plus H2O. ठीक है, सोडियम क्लोराइड मेजरली कहां से मिलता है? सी में से मिलता है. ठीक है, वी ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी. इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट होता है. इन मेनी एरियाज, कुछ एरियाज में जो सोडियम क्लोराइड है, इट इज ब्राउन, इट इज फाउंड एज ब्राउन इन कलर. ठीक है, विच इज नोन एज रॉक सॉल्ट. ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड इज फाउंड इन लार्ज क्रिस्टल्स. ठीक है, और जो ब्राउन होते हैं क्रिस्टल्स, उनमें कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है एंड दैट इज नोन एज रॉक सॉल्ट. सो दिस इज सोडियम क्लोराइड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, एंड इन दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड has a very major role. So the major raw material for the preparation of different type of salt is sodium chloride. तो sodium chloride को हम as a raw material use करेंगे to see the preparation of various salts. So the first one is sodium hydroxide, NaOH. We take solution of aqueous solution of sodium chloride, that means NaCl plus water, H2O, and this solution is also known as brine.
We call this solution brine, इसे brine भी कहा जाता है. And when electricity is passed, ठीक है, इसमें से क्या करवाते हैं हम, electricity pass करवाते हैं. So when electricity is passed through this solution, what happened? So let us say हमने NaCl और H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, ठीक है. This one is the anode, positive terminal, and this is the cathode, negative terminal. Okay. Now NaCl ionized into Na plus and Cl minus. Okay. And H2O ionizes into H plus and OH minus. Now this Na plus and OH minus combines to form NaOH. ठीक है, ये बन गया एक प्रोडक्ट NaOH. Now this Cl negative moves to the anode, the chlorine ion moves to the anode, and this H plus ion moves at the कैथोड. ठीक है, अब ये जो Cl नेगेटिव है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन. दो Cl कंबाइन होके दे फॉर्म क्लोरीन गैस. सो क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, एंड ये जो हाइड्रोजन है दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, और दो हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाते हैं H2 गैस. सो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट द कैथोड. ठीक है, सो NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2. This is the reaction for the formation of sodium hydroxide. Okay, so sodium hydroxide solution is produced at the cathode, near the cathode. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कैथोड से वहां प्रोड्यूस होता है. क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. ठीक है, सो इस तरह से हमने यूजिंग NaCl एज अ रॉ मटेरियल हमने क्या फॉर्म किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट. नाउ हमने NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया. ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस. नाउ यूजिंग दिस क्लोरीन गैस, इस क्लोरीन गैस को यूज करके हम नेक्स्ट सॉल्ट बनाएंगे. ठीक है, सो इनडायरेक्टली जो क्लोरीन गैस हम यूज कर रहे हैं वो किसे यूज करना चाहिए, बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड. तो इनडायरेक्टली हम सोडियम क्लोराइड यूज करके ही एज अ रॉ मटेरियल नेक्स्ट सॉल्ट हम बनाएंगे. और नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. Okay, now we have already learned that through the electrolysis of aqueous sodium chloride we get chlorine gas. हमें क्लोरीन गैस मिल गई. ठीक है, now using this chlorine gas as a raw material we produce bleaching powder. When this chlorine gas acts on slag lime, calcium hydroxide. Okay, when this chlorine gas acts on calcium hydroxide, slag lime, so bleaching powder is produced, CaOCl2. ठीक है, this is the formula for bleaching powder, calcium oxychloride and water. Okay, so this is the reaction for the preparation of bleaching powder. Now there are some uses of bleaching powder. Okay, it is used for bleaching cotton and linen in industries, for bleaching wood pulp, and for bleaching washed clothes in laundry. Okay, the next use is it is used for disinfecting
ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, एंड इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये यूज होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. Our next salt is baking soda, NaHCO3. You might have eaten crispy, tasty pakoras. Okay, so they are crispy and tasty because of the presence of baking soda in it. So baking soda is commonly used in kitchens. Okay, kitchen में use होता है. So what is this baking soda? This is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. The formula for baking soda is NaHCO3. It is sodium hydrogen carbonate. Baking soda is most commonly used in kitchen for fast cooking. Okay, now let's see what is the reaction for preparation of baking soda. NaCl is used as a raw material plus CO2 plus NH3. Okay, NaCl on reacting with water, carbon dioxide and ammonia, okay, gives NH4Cl, ammonium chloride and NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. So this is the reaction for preparation of sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Now if we check the pH for NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, so we find that it is a basic salt. ये क्या है? एक बेसिक सॉल्ट. इसका जो pH है दैट इज मोर देन 7. सो इट इज अ बेसिक सॉल्ट. ओके, इट इज अ माइल्ड बेस. ये एक माइल्ड बेस है. दैट इज द रीजन दैट सोडियम बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड. जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड. एंटासिड की तरह ये वर्क करता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस सॉल्ट इज हीटेड. अगर इस सॉल्ट को हीट किया जाए, जैसे आप कुकिंग में हम यूज करते हैं, तो कुकिंग में क्या होता है? सॉल्ट हीट होता है, बेकिंग सोडा गेट्स हीटेड. सो व्हेन NaHCO3 is heated, it forms Na2CO3. ये क्या बना लेता है? Na2CO3 plus H2O plus CO2. So this NaHCO3 forms Na2CO3 plus H2O plus CO2. Now, uses of baking soda. The first and foremost important use is it is used for making baking powder. Okay, so it is used for making baking powder. What is baking powder? Okay, baking powder क्या है? When a mild acid is mixed with baking soda. जब बेकिंग सोडा के साथ एक माइल्ड एसिड को क्या करें? हम मिक्स करें. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर. ठीक है, जब ये बेकिंग पाउडर केक में या ब्रेड में मिक्स करते हैं तो केक और ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं. Why does cake become spongy? स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्पंज जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं. When baking powder is mixed, ठीक है, केक में जब बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं तो वो स्पंजी क्यों हो जाते हैं? Okay, so what happens? NaHCO3 बेकिंग सोडा में जब हम एक माइल्ड एसिड मिक्स करवाते हैं, H प्लस एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं? माइल्ड एसिड. कोई भी एसिड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड इज ऑल्सो माइल्ड एसिड.
ठीक है। तो एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, H प्लस। अब हमने रिएक्शन ऑलरेडी देखी है कि जब हम NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमने ये ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि जब हम NaHCO3 प्लस कोई भी एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl, हमने रिएक्शन पढ़ी है कि जब NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये जो सोडियम है मेटल, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो एसिड का लेफ्ट ऑफ द पोर्शन है उसके साथ सॉल्ट बना लेता है NaCl। तो मतलब ये जो मेटल है सोडियम, ये क्या करता है, Cl के साथ मिलके सॉल्ट बनाता है, सोडियम सॉल्ट। तो वैसे ही सिमिलरली कोई भी एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सोडियम सॉल्ट। जैसे Na ने HCl में से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया, तो उसने क्या किया, एसिड का सॉल्ट बनाया NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिलीज होता है। ठीक है। तो जब हम केक में बेकिंग पाउडर डालते हैं और उसे हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, एंड ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस द केक्स और द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी। जो केक या जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसमें, इसलिए वो स्पॉन्जी हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की रिलीज की वजह से। Okay, so this is the reason why cakes become spongy. Now, this is one use. The second use for baking soda is it is used as an antacid. Antacid की तरह यूज करते हैं। Why? Because it is a mild base. ये क्या है, एक mild base है और ये एसिडिटी को, एसिडिक जो एसिड की जो क्वांटिटी हमारे स्टमक में इंक्रीज हो गई है उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके। एंड थर्ड, इट इज यूज्ड एज अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किसकी तरह यूज होता है, इट इज यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सो दीज आर द यूजेस फॉर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज ऑल विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। ठीक है। जब हम NaHCO3 बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। ठीक है। इस Na2CO3 का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O, इसे बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, वापस उसको क्रिस्टल के फॉर्म में लाना। So we get sodium carbonate containing 10 molecules of water. अब ये जो dot 10H2O है, what does this mean? इसका क्या मतलब है? So this we are going to study in the next portion of this chapter. For the time being, the formula for washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. Okay, and sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate decahydrate. Hydrate means water, deca means 10, containing 10 molecules of water. Okay. Now, what are the uses of washing soda? So the first use is it is used in soap and paper industries. Soap, glass also. Soap, glass and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds. Used in the manufacture of sodium compounds.
सच एज बोरैक्स, बोरैक्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। थर्ड, इट इज यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हमारे घरों में एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज होता है। क्लेंजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एंड फोर्थ, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है, खारा पानी, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को परमानेंटली रिमूव करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज वॉशिंग सोडा, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड दीज आर द यूजर्स ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, सो दिस इज ऑल विद द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स यूजिंग NaCl एज रॉ मटेरियल। ठीक है, NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके दीज मेनी सॉल्ट्स वी कैन प्रिपेयर। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, next bleaching powder, baking soda and washing soda. Are the crystals of salt really dry? Okay, we have already studied about the preparation of salt, different types of salts, what is the pH of salt and everything. These all things we have already studied. Now we are going to study whether the crystals of salt are really dry or not. For this, first of all, we will do an activity. So we have taken some crystals of copper sulfate. Copper sulfate crystals. We observe that the color of the copper sulfate crystal is blue. Okay, we have taken the copper sulfate crystals in a test tube and we start heating the test tube. हमने test tube को क्या किया? Heat किया. Upon heating the test tube, we observe that the color of the copper sulfate crystals become white. Okay, and the color of copper sulfate crystal from blue turns into white. To this white powder, when we add few drops, say 2 to 3 drops of water, जब हमने इस white powder में, white crystals में 2-3 drops of water add किया, the color again becomes blue. Okay, so this is an activity which we perform. So why does this color change happen and why is there a reappearance of the blue color? So what happens when the copper sulfate crystal, the dry copper sulfate crystals which you have taken, the dry crystals, it contains some hidden water molecules. ठीक है, इनके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हिडन होते हैं जो इसको सॉल्ट को मॉइस्ट नहीं बनाते, ठीक है, वेट नहीं करते सॉल्ट को। सॉल्ट ड्राई रहता है एंड ड्राई क्रिस्टल्स में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम उसे हीट करते हैं, सो द वाटर मॉलिक्यूल, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट रिमूव्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। ड्यू टू दिस the color of the crystal become white, and when we again add water to it, so the blue color reappears. So this is the conclusion from the observations. Okay, this is how it works. So these water molecules which are already present in the salt, this is known as water of crystallization. इसे हम बोलते हैं water of crystallization. ठीक है, so what is water of crystallization? Water of crystallization is the fixed number of water molecules. ये जो water molecules है fixed रहते हैं, is the fixed number of water molecules present in one formula unit of, जो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है विच इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट में, मतलब वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? डॉट 5H2O. अब ये जो वाटर इसमें प्रेजेंट है, द वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट, ये इस सॉल्ट को वेट नहीं करता. इट डज नॉट वेट द सॉल्ट. सॉल्ट जो है वो वेट नहीं होता. द सॉल्ट रिमेन्स ड्राई. जो सॉल्ट जो क्रिस्टल्स है वो ड्राई रहते हैं. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट में अटैच्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो ड्राई रहता है. ठीक है, और इसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का कलर है दैट इज ब्लू है. ओके, वन फॉर्मूला यूनिट मीन्स वन मॉलिक्यूल. फॉर्मूला यूनिट उसे बोलते हैं जो एक मॉलिक्यूल होता है. यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फॉर्मूला यूनिट मास, सो दैट इज फॉर्मूला यूनिट. तो वन फॉर्मूला यूनिट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स. इसे हम बोलते हैं, व्हाट डू वी से दिस? वी कॉल दिस कॉपर sulfate. This is 5. So penta hydrate. Hydrate means water. Similarly, we have already studied about one salt which is Na2CO3 dot 10H2O. This is known as sodium carbonate. 10 means deca and hydrate. This is washing soda. Okay. Another such example of water of crystallization is gypsum. Calcium sulfate plaster of Paris. Okay, POP if you say. So another such example is calcium sulfate dihydrate. This is gypsum. On heating gypsum, when we heat this gypsum, calcium sulfate not 2H2O, on heating we get a substance this is plaster of Paris. Okay, this is plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrate, half H2O. So what is the meaning of half H2O? What do you mean by half? आधा H2O कैसे हो सकता है? So this is CaSO4 dot half H2O. हमने पढ़ा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास. तो हाफ H2O का ये मतलब है दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट दूसरा कैल्शियम सल्फेट, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. That means एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट को कितना मिलेगा? हाफ H2O. So this is the meaning of half H2O. That 2 formula unit of a salt of calcium sulfate has one molecule of H2O. So that means that 1 formula unit of calcium sulfate will have half H2O. So this is the meaning of half H2O. Now, when plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrate. When this plaster of Paris is mixed with water, again we get gypsum. Gypsum is a hard solid mass. ठीक है, ये क्या होता है? हार्ड सॉलिड मास होता है. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर. एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है. दिस इज यूज्ड इन वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग फॉल्स सीलिंग्स. ठीक है, हमारे घरों में जो होती है फॉल्स सीलिंग्स वो. फिर नेक्स्ट टू ट्रीट फ्रैक्चर्ड बोन्स.
जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है उनमें जो पट्टा लगाते हैं फ्रैक्चर का, so that is plaster of Paris. For making toys and decorative items, टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज होता है. So these are all the uses of plaster of Paris. Okay, so this is all with water of crystallization, plaster of Paris. Now it is advised that plaster of Paris should be stored in airtight containers. Okay, so there is a question. So the question is, in moisture proof container, plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Why? Because when plaster of Paris gains moisture, comes in contact with the moisture, water, तो क्या होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे जब मॉइस्चर मिलता है तो इट फॉर्म्स अ हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम. इट फॉर्म्स अ हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम. और एक बार जिप्सम बन गया, then that plaster of Paris is of no use for us. वो यूजफुल नहीं रह जाता, इट इज नो लॉन्गर यूजफुल. ठीक है, हार्ड सॉलिड जिप्सम बन गया तो उस पर वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना मुश्किल है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ container. So this is all with water of crystallization, plaster of Paris, and this is all with today's class. And here we finish our chapter acid bases and salts. Thank you.